Hello everyone and welcome to Reach Your Goal classes which helps you to sharpen your minds. So what are we going to study today? We are going to study today kinds of nouns. But before we understand which are the different kinds of nouns, first let us understand what is a noun. So what is a noun? Nouns are simply the names we give to everything around us, whether it be a person, an event, a place or an object. So what is a noun? Noun क्या होता है? Noun means हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को या जानवर को या जगह को जब नाम देते हैं तो उस नाम को नाउन कहते हैं. ओके? Which are the different types of nouns that we are going to study today? In this particular session, I have covered 8 nouns. Proper nouns, common nouns, concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, uncountable nouns, collective nouns and compound nouns. तो ये 8 प्रकार के जो nouns हैं वो हम लोग आज सीखेंगे. Let us start with first, that is the proper nouns. So proper nouns. A proper noun is a specific name of a particular person, place, animal or thing. A proper noun always begins with a capital letter. ये हमें याद रखना है कि proper noun किसी भी इंसान का या जानवर का या किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है और proper noun हमेशा capital letters से शुरू होते हैं. For example, I hope Mrs. Smith is my teacher next year. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मिसेस स्मिथ जो है वो नाम है. किसका नाम है ये उन टीचर का नाम है. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. शी विल सबमिट हर प्रोजेक्ट ऑन थर्सडे. वो अपना प्रोजेक्ट थर्सडे को सबमिट करेंगी. तो ये दिन का नाम है. क्या नाम है दिन का? दिन का नाम है थर्सडे. द नेम ऑफ द डे इज थर्सडे. सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. दिस ईयर दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड इन नवंबर. So Diwali is the name of the festival and November is the name of the month. So that is why you can see they are in capital letters. ठीक है? तो proper noun मतलब क्या होता है? It is a name. किसी भी इंसान का, जानवर का, जगह का या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है उसे कहते हैं proper noun. और ये हमेशा capital letters से शुरू होते हैं. Next one, common nouns. A common noun is a name given in common to persons, places, animals or things of the same class or kind. तो अगर हम किसी को स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है. लेकिन अगर कोई कॉमन टर्म यूज़ किया जा रहा है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ब्रोक माई फेवरेट मग. तो इस सेंटेंस में जो मग वर्ड है दैट इज़ नॉट अ नेम, इट्स अ कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड. तो मग इज़ अ कॉमन नाउन. Let's go to watch a live game at the stadium. In this sentence, stadium is a common noun. The girl was sitting in the garden. The girl is a common noun. यहाँ पर मैंने उस लड़की का नाम नहीं बताया है या स्टेडियम का नाम नहीं बताया या मग का नाम नहीं बताया. तो ये कॉमन टर्म्स है इसलिए ये कॉमन नाउन्स है. प्लस गार्डन ऑल्सो. In this sentence, I have not given the name to the garden. So this is a common term which is used. That is why it is a common noun. Let us see one simple difference between proper nouns and common nouns. For example, if I specifically take the names like Rahul, Neha, Delhi, Pune, history, Hindi, March, December, Jupiter, Mars, Bay of Bengal, जैसे राहुल बॉय का नाम है. Then if I take the name Rahul, it is a proper noun. But if I say boy, it is a common noun. If I say Neha, then it again becomes a proper noun. But if I say girl, it is a common noun. If I say Delhi, Pune, then that is a proper noun. But if I use the term city, then it is a common noun. So I hope, dear children, that you have understood the difference between the proper nouns and the common nouns. Okay, let's take the next one. Concrete noun. A concrete noun is the name given to someone or something you can touch or see. तो concrete noun वो होते हैं जिसे तुम देख भी सकते हो और जिन्हें तुम टच भी कर सकते हो.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माई डॉग लाइक्स टू ईट ब्रेड. डॉग और ब्रेड बोथ आर कॉन्क्रीट नाउन्स. इन दोनों को तुम देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो. द रिवर फ्लोड बिहाइंड द स्कूल. रिवर एंड स्कूल both are the concrete nouns. Both you can touch and you can see. I love putting carrots in my salad. So here in this sentence, carrots and salad both are the concrete nouns. तो ये हमेशा याद रखना कि concrete noun क्या होता है. Concrete noun is something which you can touch and you can also see. ठीक है. Next, abstract nouns. What is an abstract noun? An abstract noun is the name given to an idea, feeling, action, quality, state, etc. that you cannot actually touch or see. मतलब तुम जिसे देख नहीं सकते हो या जिसे टच नहीं कर सकते हो. ठीक है. So you have only heard about that. You are not touching it also and you can't see it also. So that is called as an abstract noun. For example, people lost faith in banks. फेथ जो है यानी विश्वास, दैट इज़ समथिंग विच वी हैव ओनली हर्ड अबाउट. विश्वास को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं. सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ. ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. तो ताकत को हम सिर्फ सुन सकते हैं, हमने सुना है इसके बारे में, ना हम टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं. So this strength word is the abstract noun in this particular example. People were amazed at the wisdom of the old man. Again wisdom मतलब cleverness इंसान की. तो this you can't see or you can't touch. You have only heard about the man's wisdom. हमने सिर्फ सुना है कि वो इंसान क्लेवर है, उसकी क्लेवरनेस के बारे में, चतुराई के बारे में हमने सुना है. बट चतुराई को ना हम देख सकते ना ही हम टच कर सकते. ठीक है. तो सच काइंड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम. हमें ये याद रखना होगा कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में. कॉन्क्रीट नाउन्स दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड. उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम टच कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच्ड. ना हम उन्हें देख सकते ना हम उन्हें टच कर सकते. एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन ईयर. कॉन्क्रीट नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. बुक, कैट, पेन, बॉक्स एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हेट, लव, फन, सिंपैथी, ब्यूटी एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट वन, काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इन कार्डिनल नंबर्स. यानी हम उन चीज़ों को या जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, that means using the cardinal numbers 1, 2, 3. So that is called as the countable nouns. For example, the 3 brothers had many expensive toys. Brothers जो हैं उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं. टॉयज़ जो हैं उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, मतलब खिलौने. So these are the countable nouns. There were a few buildings in the 2 small villages. Buildings also we can count. Villages also we can count. So these are the countable nouns in this example. He had a cat when he was young. Cat जो है यानी बिल्ली जो है उसे भी हम काउंट कर सकते हैं. So that again is a countable noun. हम गिन सकते हैं 1 बिल्ली है या 2 बिल्ली है या 3 बिल्ली है. तो ये काउंटेबल नाउन्स है. तो जिसकी गिनती हम 1, 2, 3 से कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. Uncountable nouns. What are uncountable nouns? A noun that cannot be counted with the cardinal numbers is called an uncountable noun. तो जिन चीज़ों की हम गिनती 1, 2, 3, 4, 5 से नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज द अनकाउंटेबल. जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे सभी तरह के लिक्विड्स हैं, जैसे ऑयल है, केरोसिन, वाटर, जूस, टी, कॉफ़ी, ये सब जो है ये अनकाउंटेबल है. देन मेटल्स आर देयर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये भी जो मेटल्स हैं ये भी अनकाउंटेबल्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अनकाउंटेबल है क्योंकि हम किसी की स्ट्रेंथ या ब्यूटी या इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकते. सो दीज आर द थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स.
फॉर एग्जाम्पल हैव सम जूस प्लीज. सो जूस ये लिक्विड है, सो दिस इज अनकाउंटेबल, इसे काउंट नहीं कर सकते हम. वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज द स्काई वॉज ब्लू एंड नॉट क्लाउडी. सो फन और स्काई दोनों को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं हम. स्काई की भी काउंटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि आकाश तो बहुत ही विशाल है. सो इवन फन, उसकी भी काउंटिंग नहीं हो सकती है. सो दैट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. डू यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग. कॉफ़ी टी दोनों लिक्विड है तो दोनों अनकाउंटेबल है. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट whatever we cannot count with cardinal numbers, they are called as the uncountable nouns. Now let us take some differences between countables and uncountable nouns. Countable nouns, they can be counted with numbers. Uncountable nouns जो हैं they cannot be counted with numbers. So countable nouns जो हैं उन्हें हम 1 2 3 4 5 6 से गिन सकते हैं, लेकिन uncountable जो nouns हैं उन्हें काउंट नहीं कर सकते. Take both singular and plural forms. Takes the singular form. Can be made plurals. Cannot be generally made plural. Countable nouns जो है इनके हम लोग plurals बना सकते हैं. जैसे हम पेन को पेन्स कर सकते हैं, बॉय को बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स कर सकते हैं, बुक को बुक्स कर सकते हैं. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके प्लूरल्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कांट मेक वाटर वाटर्स. हम वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते, ये गलत होगा. ऑयल को ऑयल्स नहीं कर सकते, ये भी गलत होगा. जूस को जूसेस नहीं कर सकते, टी को टीज़ नहीं कर सकते, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कर सकते, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं कर सकते. सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उनके हमेशा सिंगुलर्स ही रहेंगे, प्लूरल्स नहीं होंगे. यूज़ द इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन हाउ मैनी. यूज़ द इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन हाउ मच. काउंटेबल नाउन्स है उसके आगे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं हाउ मैनी. फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई. सो स्टार्स क्या हो गया, काउंटेबल नाउन्स हो गया. क्योंकि लोगों को ये गलत फहमी होती है कि स्टार्स अनकाउंटेबल. स्टार्स आर नॉट अनकाउंटेबल, स्टार्स आर काउंटेबल बिकॉज बिफोर देम यू आर एडिंग द क्वेश्चन. उनके पहले तुम हाउ मैनी स्टार्स बोलते हो, हाउ मच स्टार्स नहीं बोलते हो. अभी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले तुम हाउ मच लोगे. फॉर एग्जाम्पल हाउ मच ऑयल यू विल पुट इन द कार, तो हाउ मच. और हाउ मच पेट्रोल आर यू गोइंग टू बाय, तो हाउ मच. तो दैट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल्स काउंटेबल नाउन्स के अनकाउंटेबल नाउन्स के ऑलरेडी दिए हुए हैं. अगेन काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल चेयर हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है, ट्री, एनिमल्स. ये देख सकते हो तुम के प्लूरल्स हो रहे हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स के सिर्फ सिंगुलर्स हैं, ये प्लूरल्स नहीं हो रहे. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. ये जो टिप्स हैं ये याद रखनी है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और हम कैसे डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो जिनके आगे तुम हाउ मैनी लगा सकोगे वो काउंटेबल है, जिनके आगे तुम हाउ मच लगा सकते हो वो अनकाउंटेबल. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. A collective noun is a name given to a group or collection of people, animals or things taken together as a whole. तो collective noun क्या होता है? It is a group, it is a collection. बहुत सारे लोगों का collection हो या animals का collection हो, collection मतलब बड़ा group, या चीज़ों का collection हो तो उसे कहते हैं collective noun. For example, we waited anxiously for the jury to come to a verdict. तो jury जो है यहाँ पर ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. So they are the collective nouns. The bride opened the album to look at her photographs. Album is a collection of photographs, right? So album is a collective noun. Our class took a school trip to the museum. So class here is a collective noun. जैसे हम बोलते हैं library of books. So library is a collective noun. और constellation of stars बोलते हैं हम, तो constellation भी collective noun है. या हम लोग हीप ऑफ स्टोन्स बोलते हैं तो हीप ऑल्सो इज़ अ कलेक्टिव नाउन. या बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है. सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स. अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स. सो जब हम 2 अलग अलग शब्दों को जुड़ाकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलिस मैन. पुलिस एक अलग शब्द है और मैन एक अलग शब्द है.
तो पुलिस और मैन जोड़कर हमने पुलिस मैन बना दिया. सो दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन. हेयर कट, हेयर अलग वर्ड है यानी बाल, कट अलग शब्द है, उसका मीनिंग अलग है, मतलब काटना. हेयर और कट को एक साथ जुड़ा दिया तो हो जाता है हेयर कट, दैट मीन्स बाल काटना. अगेन आइसक्रीम, ब्रदर इन लॉ, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये कंपाउंड वर्ड्स हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. प्लीज़ इरेज द ब्लैक बोर्ड फॉर मी. ब्लैक बोर्ड इज़ अ कंपाउंड नाउन. ब्लैक इज़ डिफरेंट, इट्स अ कलर. बोर्ड इट्स अगेन डिफरेंट. दोनों को जुड़ा दिया तो ये ब्लैक बोर्ड नया वर्ड बन गया. He always gets up before sunrise. Sun also, sun plus rise is equal to sunrise. My mother-in-law is the kindest person I know. This is a hyphenated compound word. Compound words के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे और फिर आप उसमें से देख सकते हो कि कौन से अलग तरह के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द कंपाउंड नाउन. सो कीप इन माइंड दैट कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ by joining two or more words and making a new word. ठीक है. जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जुड़ाते हैं और एक नया शब्द तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. So I hope, dear students, that you have understood our today's session. Today we have covered the topics of what are nouns and what are the 8 different types of nouns. With examples, I have shown you all the nouns. I have explained you all the nouns. Okay. So thank you for watching my video. If you like my channel, please do share, like and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that whenever I put up a new video, you will be the first person to receive the notifications. Okay, thank you.